going to celebrate International Women's Day. And PCOS is the most common endocrine disorder of the woman in reproductive age. Therefore, we have organized this webinar on management of PCOS and Ayurvedic perspective. And today we have got a very experienced doctor for presenting the topic. Dr. Rekha T, a native of Kerala, has completed her BMS from Amrita School of Ayurveda. She has more than 14 years of clinical experience and is presently working as medical officer in Ayurvedishala Kottakkal, Ayurvedic Hospital and Research Center at Delhi. She is expert in Uttarasti procedures as well as other Panchakarma procedures, especially related to infertility, and she has keen interest in propagation of Ayurveda. She has presented various papers in national seminars and various platforms of AVS. So I kindly request Dr. Rekha to present the topic. One minute. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, yes. First of all, thank you. Ma'am, your voice is breaking. Okay. Hello, Hello. Am I audible? Ma'am, is it possible for you to hold the mic a little bit closer? Am I audible? Hello. Hello. Yes, ma'am, you are. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. And first of all, thanking Dr. Vimal for inviting me for this session. And I'm thanking our entire team for inviting me for this function. We have 158 participants ना, तो इसी से ही समझ आते हैं आप लोग इतना interested है इस topic में. So I will finish the topic by 30 to 40 minutes. उसके बाद हम discussion शुरू कर सकते हैं. So I will try to finish all the symptoms of PCOD and the treatment, Ayurvedic management also. So please आप लोग इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा, अदरवाइज क्या होता है ना, द सेम सेंटेंस मैंने जो बताया वही क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो रिपीटेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक ना, नहीं तो फिनिश नहीं कर पाएगा. तो मैं अभी शुरू करने वाली हूँ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जो भी हमारा आयुर्वेदिक अप्रोच, हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सब में कोशिश करूंगी आपको समझाने के लिए. Ma'am, your voice is echoing. सुन रहे? विदाउट हेडफोन कैसे है? हेडफोन बिना सुन रहे? हेलो हेलो. Yes, doctor, you please proceed. We'll check. Okay, headset ಇಲ್ಲದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ? Okay. So disturbance ഉണ്ടെങ്കിൽ we will let you. Okay. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? Okay അല്ലേ? Oh, now it is okay, ma'am. It's better now. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂം മാറിയിരിക്കണം, ഇപ്പൊ തന്നെ മാറിയിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? You can try that because slight echoing is there. Yes, ma'am. The participants are also saying that the voice is not clear. Voice is not clear. Okay. ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് സ്ഥലം മാറിയിരിക്കേ, ഒരു സെക്കൻഡ്. सॉरी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है इसलिए. सॉरी. So our topic is PCOS, polycystic ovarian disease, or of reproductive age, and its main metabolic disorder. 5 to
10% of population gets affected, 40% of women with infertility, तो 60% because of endometriosis. उसके बाद उसे उतना ही 40 एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, स्त्री रोगा से ज्यादा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अंदर आ जाएगा। तो स्त्री रोगा है बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसी में ही ध्यान रखें, हम ट्रीटमेंट दे देंगे। एंड द रिस्क और एसोसिएटेड फैक्टर्स, some genetic issues are there, some environmental factors are there, it's obesity, प्री-प्यूबर्टल एंड अर्ली। को पता है ये सब स्लाइड एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है आप सब लोग डॉक्टर्स हैं ना, तो हमें पता है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच, एलएच दोनों हार्मोन्स का स्टिमुलेट दे देते हैं जीएनआरएच सर्कुलेशन की वजह से। एंड पीसीओडी में क्या होता है, एफएसएच एलएच इसका जो रेशियोज एलएच इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो स्लर्ज होना चाहिए ओवुलेशन के लिए वो नहीं होते हैं, उसकी वजह से जो फॉलिकल्स दैट में कन्वर्ट टू सिस्ट वही होते हैं ना। एंड नेगेटिव फीडबैक तो जाएगा नहीं, ये सब सबको पता है, तो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड। एंड अनदर थिंग ऑल्सो सबको पता है इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसे होते हैं, एंड लिवर से क्या रिलेशन है, जेनेटिक फैक्टर्स से क्या रिलेशन है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एवरीथिंग सबको पता है। तो मैं आयुर्वेद में ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। एंड डायग्नोसिस ये रोटरडम क्राइटेरिया यूज करके हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो मेन तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ही है, पेशेंट हमारे पास आते हैं विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ओनली। ओलिगोमेनोरिया हो सकते हैं, मेनोरिया हो सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। एंड अनदर सेकंड वन इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, साइंस एंड सिम्टम्स से पता चलते हैं। एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में टेस्टोस्टेरोन वगैरह टेस्ट करके हमें पता चलेगा। एंड अनदर थिंग इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। These three are the main criteria, हम पीसीओडी इसी के थ्रू डायग्नोस करेगा। पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, पेशेंट को हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में पीसीओ पैटर्न दिखेगा, ये 3 से हम पीसीओडी कंफर्म करेगा। एंड दिस आर द नॉन सिम्टम्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एक्ने, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एक्ने करेगा, हिर्सुटिज्म करेगा, एंड ओबेसिटी, एकांथोसिस निग्रिकेंस जो नेक की साइड में कलर चेंजेस, हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हेयर लॉस होते हैं, एंड अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी के एक रीजन हो जाते हैं। दीज आर द पीसीओ ओवरीज। एंड अल्ट्रासोनिक व्यू ऐसे है, जो माला की तरह जो सिस्ट देखा है, दैट इज पीसीओ। Ma'am, can you just एंड द साइंस एंड put the सिम्टम्स, presentation on full screen mode? स्क्रीन नहीं कर पा रहे, मैंने कोशिश किया है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा। Madam, ಅದು presentation mode లో వచ్చా మాది. ಅದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೀ ಆನ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ചെയ്തു ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ F5 ಅಮರ್ತೆ ಮಾದಿ. ಎಂದ we tried ಅದೆಲ್ಲ ಕೀ ಎಂತೋ ಪಟ್ಟಿ ಅದಾನ ಕೀ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು, we are not able to do that. I just explain it. And the signs and symptoms are menstrual dysfunction and anovulation, HO axis dysfunction, that is increased LH-FSH ratio, excess androgens, that means excess testosterone, that may create hirsutism, acne, and androgenic alopecia, and insulin resistance, and ultimately infertility. Obesity, that creates obstructive sleep apnea also. And the complications are psychological disorders like depression, anxiety, etc., infertility, DUB, irregular patterns of menstrual cycles, excessive bleeding, endometrial hyperplasia, lining thick हो जाता है, and adenocarcinomas of uterus, obesity, type 2 diabetes, atherosclerosis, sleep apnea, and non-alcoholic liver disease, etc. And women diagnosed with PCOS are 3 times the risk of diabetes, stroke, and heart disease, twice the risk of anxiety and depression, 10 times the risk of infertility. तो PCOD पेशेंट को हम थ्रू आउट लाइफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंड द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पेशेंट आ गया तो हम पहले देखना पड़ेगा ना, एक पेशेंट पीरियड की डेट ऊपर हो गया बोलकर हमारे पास आएंगे, तो हम पहले क्या करेगा, इफ दे आर मैरिड
हम डेफिनेटली प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा. प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी नेगेटिव हो गया, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट पीसीओडी और सम अदर सिम्टम्स. थायराइड डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म सिंपल ब्लड टेस्ट में डायग्नोस कर सकते हैं. हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज है तो ओवुलेशन होगा नहीं, उसमें भी हमें पीरियड्स नहीं होते हैं, उसके हिसाब से माइग्रेन हो जाएगा. हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में हमारी एक लक्षण हमें ये समझ आते हैं पीरियड के साथ साथ माइग्रेन होते हैं. उस तरह की कंडीशन आ गया तो सिंपली ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन या एक्स वाइट सेक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट, इस सिम्टम के अलावा हम सीरम प्रोलैक्टिन चेक कर सकते हैं. समटाइम्स पिट्यूटरी मैक्रो और माइक्रो एडेनोमा हो सकते हैं उसकी वजह से, तो हम एमआरआई ब्रेन करना पड़ेगा. तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हमें एक्सक्लूड करना है. एंड नेक्स्ट वन इज एंड्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ ओवरी एंड एड्रिनल्स. ये भी हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, कुशिन सिंड्रोम टेस्ट में पता चलेगा. दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड टाइप्स. हमारे पास जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं उसमें मेजोरिटी 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स ओबेस पीसीओडी आते हैं एंड 30% हमारे पास लीन पीसीओएस आते हैं. तो पेशेंट क्या बोलेगा कि जनरली बोलते हैं हमारे पास मेरे बाल आ गया है और एक्ने से उसका ट्रीटमेंट चाहिए. पीरियड सही आ रहे, उससे समय समटाइम्स बोलेगा नहीं पीरियड सही नहीं आ रहे, दे आर नॉट बोदरिंग अबाउट इट. उससे ज्यादा उनका प्रॉब्लम एक्ने में और हेयर जो हिर्सुटिज्म उसमें ज्यादा बोलेगा. तो वी हैव टू डायग्नोस ओबेस पीसीओएस, अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंड लीन पीसीओएस दूसरी तरीके से. एंड आयुर्वेदिक अप्रोच ये सिंपली बोल रहे हैं, इसमें पित्त कफादिक कंडीशन इन वादस्थाना निदाना कफ मेदोगरा आहार विहार एंड एक्सेसिव यूज ऑफ जंक फूड, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है इसका मेन रीजन. एंड भाई का भी मेरे वैसा ही हुआ था. धातु विशेषड इन अपान स्थाना चिकित्सा एंड निदान परिवर्तनम एवं चिकित्सा. जंक फूड खाते हैं तो वो कम करना भी पड़ेगा. एंड दिव्यभाश्रय चिकित्सा, दैट मीन्स योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस मेन इश्यू है आज का सबका, पढ़ाई के टाइम भी उसके बाद भी. एंड आयुर्वेदिक अप्रोच जनरली हमारी टेक्स्ट बुक तो हम 20 सिम्टम से ये लक्षण के अनुसार हम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. तो प्रधा पुष्पम तो तथा नारी, इसी श्लोका से हम पुष्पक निजादा हारिणी या रेवती डायग्नोस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर पैटर्न ऑफ पीरियड्स. एंड योनि व्यापत, आर्तव व्यापत, ये भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को समझाते हैं. एंड वंध्यता मेनली बिकॉज ऑफ एनोवुलेशन. एंड स्थौल्य ओबेसिटी एंड हाइपर इंसुलिमिया प्रमेह एंड मुखदोषिका एक्ने एंड खलिदा androgenic alopecia, and Ashtanindita Purusha, Adiloma, Hirsutism. These are the some references. And Artava Vyapat, Doshera Vradamargatvat, Artavam Nashyati Striyam. Margavroda Vada Visheshan result in amenorrhea in obese PCOS. That is the difference. Obese PCOS में मोर ऑफ मार्गावरोध चिकित्सा हमें देना पड़ेगा. एंड लीन पीसीओएस में धातुक्षय वादा विशेषण रिजल्ट इन अमेनोरिया इन लीन पीसीओएस. व्याधि खड़गास दोष कफा पित्त वाद, ऑलमोस्ट 3 दोषास अफेक्टेड. कफा पित्त आधिक्य कंडीशन है बट ऑल द दोषास आर अफेक्टेड. धातु रस मेद स्त्री शुक्र अर्थव. उपधातु रजस मल क्लेद एंड रोम स्रोतस रसवः आर्तवः मेदोवः एंड शुक्रवः. अग्नि concept of ama because of junk food, jadrakni and dhatuakni mandya. Ayurvedic treatment bhadaka bhavrada marganam apravartamanam pittalairubaajare tat pravartamanam. That means pittala dravya teeshna ushna aushadasya upayogam. Okay, teeshna ushna aushadas should be used. And tatra samshodhanam agneyadi dravyanam vidhivad upayoga, same thing. निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा. एंड सौमनस्यम गर्भग्रहण इन stress management is the main treatment for infertility patient. Doctor, sorry to interrupt. Can we present the slide? Means full ആക്കാൻ പറ്റും. full ആക്കിക്കോളൂ. ശരി, ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. ചെയ്തോളൂ. ഇതിന്റെ ആ കീ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. You just say next. Okay. After that.
Management. slide number. Management. 20. കുറച്ചുകൂടി താഴെ ഇനി 2-3 sides next okay ये पीछे one more side इसका पीछे one more side हाँ मधी it's okay next slide please next slide വേണമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് One second. ഇതാണോ മാഡം? അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു management of presenting complaint Case next slide. next slide 21. 21. 21 okay, just a minute. 21 ആണ് അതിന്റെ yes मैनेजमेंट मेनली हम एक पीसीओडी पेशेंट हमारे पास आ गया तो हम सीधा कुछ मेडिसिन सुकुमारम दे वर्णादि दे ऐसे नहीं चलेगा ना मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट का प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देख के हम ट्रीटमेंट करेगा एंड मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्वेले पीसीओडी का आफ्टर इफेक्ट आफ्टर मेनोपॉज भी चल जाएगा ना तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्वेले and lifestyle modification by diet and regular exercise for 45 minutes 5 days a week तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम समझाते रहना पड़ेगा रिपीटेडली कंसल्टेशन के लिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये जो बच्चे ज्यादा लेजी होते हैं उनको ही होते हैं ना पीसीओडी तो एवरी 15 डेज या 1 मंथ बुला के हम बच्चे को डांटते रहना पड़ेगा फॉर 45 मिनट्स एक्सरसाइज 45 मिनट्स बोलेंगे तभी 30 मिनट्स करेगा तो एवरी 15 डेज या मंथली वंस विजिट मैंडेटरी है बोलते रहना पड़ेगा एंड नेक्स्ट स्लाइड next slide next slide Sir, kindly change the slide. I'm missing. Sorry, some issues are there. Here you can change, but that is not moving there. Doctor, you may proceed. okay and now we can other മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണം ഇല്ല മാഡം ഞാൻ മാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ മാഡത്തിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാ തോന്നുന്നത് അതെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ആ ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടാ വെച്ചേക്കണത് ശരി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസ് 1 ആ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇപ്പോ ശരി ഒരു സെക്കൻഡ് അത് മൊത്തം പോയോ കാണാണ്ടോ മാഡം ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ശരി स्टूडेंट ऑफ 20 केस 1 में अलग अलग तरीके की केस के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट मेथड आपको समझाने की कोशिश करूंगी केस 1 ये तो इमेजिनरी केसेस है ये हम एक्सप्लेन करने के लिए डाला हुआ है केस 1 ए स्टूडेंट ऑफ 21 years came to OPD with the complaints of menstrual interval more than 2 months with scandy flow hair fall acne duration 4 years having weight gain hairs on face, chest, abdomen, etc. On examination, acanthosis migricans on neck. Obese, having of BMI 39. तो ये बच्चे 21 ईयर के बच्चे आ गया है
उसमें 2 महीने से पीरियड नहीं आया है, 2 मंथ के इंटरवल होते हैं हमेशा, एंड पीरियड फ्लो बहुत कम है, हेयर फॉल होते हैं, एक्ने होते हैं, 4 साल से ऐसे हैं, बच्चे का वेट बहुत गेन किया है, BMI 39, वेट ओबेस मोर देन 80 kgs होगा, एंड हेयर्स ऑन फेस चेस्ट, तो हाइपर एंड्रोजनिज्म है, एंड एकांथोसिस निग्रिकेंस है, नेक में हाइपर पिगमेंटेशन है। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कैसे देना है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसमें 2 महीने के बाद पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो 2 तरीके के पेशेंट्स आएगा हमारे पास। ये 4 साल से ऐसी हिस्ट्री है तो डेफिनेटली वो लोग एलोपैथी दिखाया होगा। तो अब एलोपैथी दिखाते समय बट दे विल डू, डेफिनेटली दे विल स्टार्ट मेटफॉर्मिन एंड OCP। तो मेटफॉर्मिन खा के बहुत, मतलब 4 4 साल से ही मेटफॉर्मिन खा रहे या OCPs खा रहे, तो हमारे पास उसके ट्रीटमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ओनली, ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो 2 महीने से पीरियड अबनॉर्मेलिटीज है, तो एवरी 2 मंथ्स ही पीरियड्स आ रहे हैं, तो अभी मेडिसिन नहीं खा रहे, तो इट्स वेरी इजी टू ट्रीट। नहीं OCP में गया बहुत सालों तक तो मुश्किल है। तो हम इस तरीके के केस में, तो 2 महीने से पीरियड नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे सुकुमारम मरणादि ये सब दिखाने के खाने के पहले हम विड्रॉवल के लिए कुछ देना पड़ेगा। विड्रॉवल जो फर्स्ट पीरियड एक बार आने के लिए, तो हम कुलथादी दे दिया या कुछ मेडिसिन दे दिया, 15 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गया, पेशेंट आएगा पीरियड नहीं आ रहा है, 2 हफ्ते हो गया पेशेंट आएगा पीरियड नहीं आ रहा है, समटाइम्स पेशेंट बोलेगा 1 मंथ बाद भी पीरियड नहीं आया, 2 मंथ्स के बाद भी पीरियड नहीं आया। एलोपैथी में ऐसे नहीं है 21 डेज खाओगे 28th डे पीरियड्स आएगा, तो इसमें ऐसे क्यों नहीं, यही पूछेगा हमारे पास। तो हमें एक्सरसाइज बोलेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस बोलेगा, एवरीथिंग। समटाइम्स वो सब करने के बाद भी आफ्टर ए मंथ और 2 पीरियड्स नहीं आएगा। तो एलोपैथी जैसे वो लोग मेप्रेट दे रहे या कुछ प्रोजेस्टेरोन दे रहे, 3 डेज दे दिया, 5 डेज दे दिया, विड्रॉ किया तो पीरियड्स आ गया, पेशेंट खुश हो गया, उस तरीके के हम भी कुछ देना पड़ेगा विड्रॉवल के लिए। तो उसमें हम जनरली कुछ कुछ मेडिसिन विड्रॉवल के लिए दे सकते हैं। കുറച്ച് താഴെയുള്ള സ്ലൈഡ് ആവുന്നില്ല വിഡ്രോവൽ, ഒരു 26 तो मैंने जब वो स्लाइड आएंगे तब बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। एंड ओबेस पीसीओएस विड्रॉवल में अभी बताऊंगी, वो स्लाइड जब आएंगे। ओबेस पीसीओएस में BMI मोर देन 30 kg/m², उसमें हमें ओबेस पीसीओएस बोल सकते हैं। तो उसमें पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स या जिम वगैरह ज्वाइन करके रेगुलर करना ही पड़ेगा। उसके साथ बीइंग ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हम इसमें मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने वाली मेडिसिन काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड रिजल्ट है। पेशेंट बोलेगा मैं 1 महीने जिम गया, मेरी 1 किलो भी कम नहीं हुआ, मेरे साथ जो आते हैं उनका 2 किलो गया है, 3 किलो गया है, हमारी क्यों नहीं जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को काउंसिल करना बहुत जरूरी है। हम बोलना पड़ेगा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका अल्ट्रासाउंड में PCOS आया हुआ है, PCOD आया हुआ है, आपका सारी PCOD प्रोफाइल में हमारी LH FSH रेशियोस गड़बड़ है, आपका सारी इंसुलिन रेसिस्टेंट, इंसुलिन PP, फास्टिंग PP गड़बड़ है, आपका सारी हॉर्मोन्स गड़बड़ है, तो आपका वेट रिड्यूस करना इतना आसान नहीं। ये बात तो हम पहले पेशेंट को एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि आजकल जो टीनेजर जो बच्चे आते हैं उसको समझाना थोड़ा टाइम लेना ही पड़ेगा। एंड कड़वी कड़वी दवाई दे रहे, तो वी शुड स्पेंड सम टाइम उनके ऊपर, थोड़ा टाइम देके बच्चों को समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। तो आपको आधा किलो भी रिड्यूस नहीं हुआ, still you have to continue जिम या योगा, एरोबिक्स, whatever it is, कुछ ब्रिस्क एक्सरसाइज करे, वही ज्यादा बढ़िया होगा, एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months। उसके बाद ही आपका वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, उसके पहले नहीं होगा। एंड जब तक पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे तब तक वेट रिडक्शन स्लो है, ये तो समझाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं, सम पंचकर्म प्रोसीजर्स भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मरणादि कषायम, चंद्रप्रभावटी, विडंगादि चूर्णम, पथ्यादि चूर्णम, किशोर गुगुल, कांजनार गुगुल, ये फ्यू सम एग्जाम्पल्स। हमारा जो मेडिसिन है उसको कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को दे देना। एंड साथ साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट जो भर्ती करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको भर्ती करके स्नेहपान विरेचन दे सकते हैं, वमन दे सकते हैं। नहीं इस तरीके की पेशेंट सुकुमार है, इस तरीके की नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तो मसाजेस दे सकते हैं, हमारे उद्वर्तनम दे सकते हैं, हमारे पास अमृतगाड़ी पोड़ी की, एंड एनी टाइप ऑफ रोक्षणा,
ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं उसे। इनिशियली अभ्यंगम स्वेदनम सब दे सकते हैं, उसी से सब इनिशियली जो वाटर रिटेंशन पार्ट कम हो जाते हैं ना, तो वेट नहीं रिड्यूस हुआ है तभी इंच लॉस अच्छे से मिल जाएगा, उससे पेशेंट खुश हो जाते हैं। इस तरीके की ट्रीटमेंट करके हम ओबेसिटी को मैनेज करके एंड साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस सही करके पीरियड रेगुलर किया तो ओबेसिटी अपने आप ठीक हो जाएगा। पीरियड्स मंथली 28 डेज से 35 डेज में पीरियड्स आना शुरू किया तो वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा एंड साइमल्टेनियसली ऑल अदर सिम्टम्स रिड्यूस होगा, तो पेशेंट को काउंसिल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज पीसीओडी विद हिरसुटिज्म। तो पेशेंट आके समटाइम्स बोलेगा पीरियड की तो वो बॉदर ही नहीं कर रहे होगा, दे विल से आई वांट टू रिमूव माय फेशियल हेयर, मेरी शादी होने वाली है, मेरी फेशियल हेयर रिमूव करना है, मुझे एक्ने नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। बट पीरियड तो उनको समझ ही नहीं आ रहे होगा ये पीरियड की वजह से है। पीरियड जब तक ठीक नहीं हो रहे तब तक आप कितनी भी बार लेसर ट्रीटमेंट करो या एनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, आपको वो 7 days 8 times लेसर करके भी पेशेंट आता है, फिर बोलेगा मैंने कितना लेसर किया, मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो हम पूछते हैं आपका पीरियड्स रेगुलर हो, पीरियड तो रेगुलर नहीं है, तो वो तो उनको बोधर ही नहीं है, तो हम बोलते हैं हाँ पीरियड नहीं है सही है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन नाम से हार्मोन बढ़ेगा, तो उससे एंड्रोजेंस है, वो मेल पैटर्न है, मेल जैसे है वैसे ही है वो हार्मोन, तो आपको बाल तो आएगा। ये चीज को पेशेंट को समझा के फिर उसके अनुसार उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओरली ट्रीटमेंट बिना एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करके हमें हिरसुटिज्म ठीक नहीं कर पाएंगे, ये बात पहले समझाइए। एंड फ्यू ट्रीटमेंट मेथड्स हम ओरली मेडिसिन जो सुकुमारम वरनादि किशोर गोकुल अशोक आर्यश कुमार या सब जैसे जो भी मेडिसिन हम ओरली देते हैं उसके साथ साथ हम कुछ ट्रीटमेंट एक्सटर्नली दे सकते हैं। एग्जाम्पल गंधक रसायन हनी के साथ रोज वाटर के साथ आपको फेस में लगाने के लिए दे सकते हैं। गंधक itself इट्स अर्थवा ऑफ पार्वती, सो इट माइट बी एंटी एंड्रोजेनिक ऐसे। एंड नालपामरा तैलम इसका सब ड्रास्टिक जो लगाएंगे तुरंत रिजल्ट ऐसे कुछ नहीं है, माइट बी 3 months 6 months ऐसे हम यूज करेंगे। ओरली जो मेडिसिन का रिजल्ट भी होगा, एक्सटर्नली अप्लाई करने की वजह से ग्रोथ कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज हल्दी चूर्णम विथ मिल्क और हनी। एंड अनदर वन इज इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुद्ध Manashila, Haridhala, and Shankavasma. Bhavana in banana roots Swarasa for 7 days. The powder applied with rose water in affected area for 30 minutes. इस तरीके की कई मेडिसिन मार्केट में आयुर्वेदिक अवेलेबल है, वो सब लगा सकते हैं, पेशेंट को तसल्ली मिलने के लिए भी दे सकते हैं एंड सम रिजल्ट्स उसका भी है। बट ओरली ट्रीटमेंट बिना हिरसुटिज्म ठीक नहीं होगा, ये बात समझाइए पेशेंट को। एंड द नेक्स्ट वन इज पीसीओ विद एक्ने। नेक्स्ट स्लाइड। पीसीओ विद एक्ने। एक्ने तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा, जो टीनेजर हो या 20+ का बच्चे हो, उनको तो एक्ने तो पसंद ही नहीं होगा ना। तो एक्ने समटाइम्स पीसीओडी बिना भी आए तब भी बच्चे बहुत स्ट्रेस में आएगा। तो पीसीओडी विद एक्ने में हम उसका ऑयली जो खाना पीने में जो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सब समझाना पड़ेगा। चिकन जो 45 डेज में जो चिकन को पूरा 4 months में जो वजन होना चाहिए वो 45 डेज में करके विद एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोनल इंजेक्शन करके जो मुर्गा को पका करके वो भेजते हैं, वो मुर्गा खाने वाले बच्चों को एक्ने तो होंगी, ये चीज तो हमें समझाना पड़ेगा बच्चों को। और बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो खाने पीने में कोई परहेज ही नहीं है, जो मर्जी खाते हैं और टाइम पे खाते नहीं है, ये सब टाइम पे सोते नहीं है। और नो एक्सरसाइज, जीरो एक्सरसाइज, हम बोलते हैं ना लड़की लड़का में कोई अंदर नहीं है, दोनों को एक जैसे खाना, तो इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी सब बोलते हैं। बट पुरानी लोग क्या करते थे, लेडीज को ज्यादा देते नहीं, जो हम हमारे घर में चिकन बनाते हैं या फिश बनाते हैं, तो लड़कों को 2 पीस दे दिया तो लड़की को 1 पीस दिया होगा उस उम्र। तो हम इसको जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बोल के अभी हम लड़ते हैं, बट माइट बी ये रीजन क्योंकि ये फर्टिलिटी पीरियड में हमारी जो मेनार्की जब शुरू होंगे उस समय हम एक्सेसिव क्वांटिटी ऑयली स्पाइसी मसाला यूज करने की वजह से हमारी हाइपर एंड्रोजनिज्म हो रहा है, तो इसकी वजह से लेडीज को कम दिया होगा इस तरीके की चीजें। ठीक है। एंड द एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज, सुबह थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना, ये सब पुराने घर में आदत है, ये सब बच्चे आजकल करते नहीं, दे आर बिजी। सुबह सुबह स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन में जाना है, दे डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये सब रीजन है, हम सबको पता है, ये तो बच्चों को डांट के समझाना ही पड़ेगा, सुबह टाइम नहीं है, शाम को टाइम निकालना पड़ेगा। 45 मिनट्स डांट के बोलेंगे तभी 30 मिनट्स करेगा।
ठीक है, हाँ ये सब हम एन इंटेक ऑफ नॉर्मल फ्रूट्स, नॉर्मल मतलब नेचुरल शुगर, हॉर्मोन्स ठीक करने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलड्स, ये सब बहुत खानी पड़ेगी ना, डिटॉक्स करने वाली, ये सब हमें समझाना पड़ेगा, तभी स्किन अच्छा होना है। तो फल फ्रूट का ज्यादा ही करना पड़ता है, सब बच्चों को डांट के समझाना पड़ेगा। एंड सब मेडिकेशंस जो हमारे यूज कर सकते हैं, इसमें पित्ताधिक्य कंडीशन है, तो वी हैव टू यूज द ड्रग्स टू रिड्यूस पित्ताधिक्य, एंड दैट माइट बी मोर यूजफुल। तो इसमें सुकुमारम वगैरह हम दे देगा, साथ में शारिबाद्यासवम, चंदनासवम, तिक्तगम कषायम, इस तरीके की मेडिसिन दे देगा। महातिक्तगम दे सकते हैं, तिक्तगम, गुरुचादी एंड चंदना शीरादी, इस तरीके की काढ़ा दे सकते हैं। एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए निम्बा हरिद्रादि चूर्णम, एलादि चूर्णम, त्रिफला चूर्णम, अकॉर्डिंग टू द स्किन नेचर हम इसमें बटर मिल्क मिला के, रोज वाटर मिला के, हनी मिला के सब दे सकते हैं। ये लगाते समय जनरली एक बच्चे को एक्ने है तो निम्बा हरिद्रादि चूर्णम अकेला लगाए तो क्या होगा, थोड़ा सा ये जो एक्नेस होते हैं ना, इट लुक्स लाइक ड्राई और स्वेलन, तो बच्चे आएगा बोलेगा मुझे ये चूर्ण सूट नहीं कर रहा। तो हमें बोलना चाहिए, हमें समझाना चाहिए, इट्स ए बैक्टीरियल कंडीशन। आपको जो है स्किन पोर्स ओपन है तो ऑटोमेटिकली सीबम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके आपको पस क्रिएट करेगा। उसके ऊपर हम नीम के पत्ते, हल्दी जैसे चीजें यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्वेलन जैसे दिखेगा, तो पेशेंट को बोल दीजिए उसके साथ आप चावल की आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, चंदन, कुछ भी इसको ठंडी करने वाली चीजें साथ में मिला सकते हैं, बटर मिल्क के साथ यूज कर सकते हैं। फिर लगा के जो थोड़ा सा आपको एलिवेटेड जैसे दाने दिख रहे हैं, इट्स ओके, 2-3 नेक्स्ट डे वो सबसाइड हो जाएगा, रेगुलर यूज करने से उसमें रिजल्ट ज्यादा। ये एलादी चूर्ण, निम्बा हरिद्रादि, त्रिफला, जो भी चूर्ण हम यूज करेंगे ना, थोड़ा सा सिम्टम्स बढ़ा हुआ दिखेगा, बट ये समझाइए पेशेंट को, तो उनको समझ में आ जाएगा। एंड अभी पत्ती करा चूर्ण के माइल्ड विरेचन हम दे सकते हैं, समटाइम्स सद्य स्नेहा सद्य विरेचन दे सकते हैं, महातिक्त घृतम सुबह शाम को अभी पत्ती चूर्ण ऐसे भी दे सकते हैं। तो मृदु विरेचना, ये भी एक्ने वगैरह जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। नेक्स्ट हेयर फॉल से पेशेंट आएगा, डैंड्रफ है, जनरली विंटर टाइम में ही हमें ज्यादा डैंड्रफ होते हैं ना, बट ये सीबम ज्यादा सिक्रेट, हाइपर एंड्रोजनिज्म कंडीशन है ना, इसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ही होगा, सीबम ज्यादा ही प्रोड्यूस करेगा, तो डैंड्रफ तो होगा हमेशा, ये विंटर बिना समर भी डैंड्रफ होते हैं। तो डैंड्रफ बहुत है तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल भी बढ़ेगा, इसमें भी बच्चे को समझाना है। और हेड वॉश की जो फंगस हो वट एवर इट इज, हम तो हेयर धोने का इम्पोर्टेंस बच्चे को समझाना पड़ेगा। बच्चे तो जल्दी भाग के कुछ वॉश करके भाग देते हैं। सॉरी, तो इसमें कुछ ऐसे त्रिफला काढ़ा बना के हम धो सकते हैं, ठीक है, ये सब बच्चे को समझाइए। थोड़ा दही का पैक यूज कर सकते हैं, अलसी वगैरह, एंड मेहंदी का पैक लगा सकते हैं, बेबी का पैक, इस तरीके की हेयर पैक बच्चों को समझाइए। वो एक्सटर्नल स्किन का ट्रीटमेंट जैसे, ओरली तो हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट करेगा ही करेगा, एंड हेयर फॉल के लिए जो ओरली हम मेडिसिन महातिक्तगम दे सकते हैं, एंड सब आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट, बेबी सिंदूरम, प्रमाणवसम दे सकते हैं, लोह सिंदूर दे सकते हैं, एंड सम रसायनास, हम नारसिम्हा रसायन दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं, भ्राम रसायन दे सकते हैं। ये पहले हम शोधना ट्रीटमेंट करके फिर लास्ट हम रसायना ट्रीटमेंट में चले जाएगा, तो उसकी वजह से हेयर फॉल में काफी फर्क पड़ेगा। एंड द ऑयल रिपीटेडली, नीली भृंगादि तैलम, कुंडला गांधी तैलम, केरा तैलम भी आते हैं, मालत्यादि, इस तरीके की हेयर ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं। केशियम नाम से हमारा नया प्रोडक्ट्स है, ये सब हेयर फॉल के लिए हम दे सकते हैं। एंड डैंड्रफ में ओरली मेडिसिन देना पड़ेगा, सिंपली हेयर हेयर क्लीनिंग का जरूरत समझाइए, इसके साथ हेयर डैंड्रफ के लिए हमें टैबलेट, इस तरीके हेयर ऑयल्स, धूर्तुरा पतरादि ऑयल, अये पाल गेर तैलम एंड त्रिफलादि गेर तैलम, इस तरीके के ऑयल्स भी हम दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट के बारे में समझाना पड़ेगा। एंड अनदर केस, सो उस केस में मैं कुछ
फ्यू सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट बताया. नेक्स्ट केस नंबर 2, लेडी ऑफ 25 years came with case of amenorrhea more than 7 months. Weight gain, palpitation, facial hairs. These are the symptoms. Menstrual history, menarche at the age of 11. Cycle irregular, 1 to 2 days. Scanty periods, 35 to 40 days cycle आते थे. 5 years ऐसे था. Then irregular 1 day, 90 to 100 days. वो धीरे धीरे बढ़ के जा रहे. 3 months to 4 months. Now amenorrhea for 6 months. पहले तो 35-40 days में menarche में आते थे. फिर 3 to 4 months हो गया. अभी आ रहे 6 months 7 months में एक बार. इस ऑन ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन एंड ओसीपी. तो मेटफॉर्मिन एंड ओसीपी खाते समय पक्का 28 डेज में पीरियड आएगा. बट वो खा खा के ओवरीज का जो नेचुरल रेस्पॉन्स कंप्लीटली बन गया. इट्स माइट बी कंप्लीटली एनोमोरल साइकिल. एनोमोरल साइकिल में 25 ईयर्स के बच्चे हैं, हार्मोन खा के सब कुछ गड़बड़ करके आएगा. तो हमें हमारा ट्रीटमेंट की रेस्पॉन्स मिलने के लिए ज्यादा टाइम भी लगेगा. तो पेशेंट को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है. जादू समझ के आएंगे तो पेशेंट को इस तरीके की चीजें हम लाइटली समझाना पड़ेगा. शुरू कर लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट इज द विथड्रॉवल ब्लीडिंग. विथड्रॉवल ब्लीडिंग, विथड्रॉवल के लिए तो 7 मंथ से पीरियड रही है एंड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा चुका है. अभी वो लोग उसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से वो सब खाना नहीं चाहते हैं. ऐसे सब बोल के पेशेंट आएगा. तो उसमें तो हमें विथड्रॉवल ब्लीडिंग के लिए क्या देना है. तो इंस्टेंट रिलीफ, जैसे मैंने पहले बोला है ना, जो इससे उन्होंने मेप्रेड देते हैं, प्रोजेस्टेरोन देते हैं. 3 डेज दे दिए, 5 डेज दे दिए, विड्रॉ किया. दवाई मतलब दवाई रोकने की 3rd डे 5th डे सब पीरियड्स आ जाएगा. हमें भी ऐसे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलने के लिए. तो मैं आपको कुछ समझाऊंगी. तीक्ष्ण उष्ण औषधा हम कैसे दे सकते हैं, लाइक होम रेमेडीज. एग्जाम्पल 30 ml ऑफ टैमरिंड. टैमरिंड एक आंवला की साइज में लीजिए. वो गुनगुना पानी में डाल के रखना. 5 to 10 मिनट्स में वो मेल्ट हो जाएगा ना. अच्छे से उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छान के अंदर से 30 ml होगा. ये 30 ml हम 3 डेज एम्प्टी स्टमक देने के लिए बोल देते हैं. अवॉइड एसिडिटी पेशेंट. बहुत ज्यादा एसिडिटी पेशेंट को ये नहीं खा पाएगा. तो हम 30 ml टैमरिंड जूस 3 डेज देते हैं. तो 3 डेज देने के बाद वो बंद करने के लिए बोलते हैं. उसके साथ बाकी मेडिसिन सब कुछ बंद कर लेते हैं. सुगवाना कुछ भी दे रहे हो सब टेम्परली बंद करेगा. एंड उसके बाद 3 डेज वेट करके या समटाइम्स 7th डे 3 to 7 डेज वेट करने के लिए बोलेगा. उसके अंदर पीरियड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. 80 to 90% बच्चों में ऐसे करने से पीरियड आएगा. एंड अनदर वन इज द्रोण पुष्पा. तुम्बा बोलते हैं मलयालम में. ल्यूकसेफलस. इसका स्वरस लेकर 30 ml जागरी करीपट्टी के साथ देना चाहिए. करीपट्टी को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं. जागरी का एक वर्षन है. द्रोण पुष्पा के साथ जागरी मिला के 3 डेज सेम 3 डेज दे दिया. फिर हम विड्रॉ किया. माइट बी 3 to 7 डेज के अंदर पीरियड आ जाएगा. अनदर वन इज black sesame seeds, karinjeeraga. It's 1 teaspoon and methi seeds 1 teaspoon. Boiled in 6 glass of water, reduced to 3 glass and 5 Dhanvantaram gulika plus शुंडी चूर्णा, जागरी एंड ये सब मिला के रखे. हाफ ग्लास फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग के लिए देना. ये भी सेम 3 to 5 डेज 3 to 5 डेज खिला के फिर हम विड्रॉ करना पड़ेगा. देन अगेन पीरियड्स आ जाएगा. एंड ये भी वर्क नहीं किया. नेक्स्ट बीटल लीव्स. Betilla, betel leaves 3 betel leaves ले लिया. 7 petals of वृक्षाम्ला, कुडम्बड़ी बोलते हैं वृक्षाम्ला. and 3 grains of pepper. sorry 3 grams of ginger and 3 grams of turmeric powder. hibiscus की फ्लावर 3 पूरा 3 फ्लावर ले लिया. उसके पेटल्स निकाल दिए. ये भी हम दे सकते हैं. एंड क्लासिकल मेडिसिन चाहिए तो कुलधादी कषायम 15 ml 60 ml lukewarm water मिला के उसमें 3 grams 2 grams सब पलाक्ष क्षारम या कल्याणक क्षारम मिला के सुबह एक बार दे सकते हैं. रात को भी बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर. हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर दे सकते हैं. ये भी हम कंटिन्यूअसली 3 to 7 डेज दे सकते हैं. उसके बाद पीरियड आ सकते हैं. दूसरा हमारे प्रोडक्ट है रजप्रवर्तनी वड़ी. तो रजप्रवर्तनी वड़ी हम जनरली में ऐसे बोलते हैं पेशेंट को हम इंड्यूस करने जैसे रिजल्ट मिलने के लिए 21st डे ऑनवर्ड्स रजप्रवर्तनी वड़ी खाने के लिए बोलते हैं. 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 2 आफ्टरनून, 2 डिनर के बाद. 6 टैबलेट्स पर डे भी दे सकते हैं यदि इतना ज्यादा पीसीओडी है तो.
तो उससे भी हमें 28th डे या 32 डेज में पीरियड्स मिल जाते हैं. Another one is Kumaryasam with Chandra Prabhavati, 25 to 30 ml of Kumaryasam with 2 tablets of Chandra Prabhavati भी 7 days कंटिन्यूअस दे दिया तो हमें पीरियड्स आ जाएगा. ये सब विड्रॉवल के लिए है, मतलब 2 months हो गया, 3 months हो गया, पीरियड नहीं आ रहे तो पेशेंट तो पूछते रहेगा ना क्यों आया, कब आया, तब तो देना पड़ेगा. केस नंबर 3. ये अनदर टाइप ऑफ केस. ये स्टूडेंट ऑफ 20 years केम विद मेनोरेजिया मोर देन 5 years प्लस गिडनेस. मेनोरेजिया है तो DUB है ना, तो बाकी जो बना हुआ है उसका क्या? बहुत ज्यादा पीरियड्स है तो गिडनेस तो होंगी. ठीक है. एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्टली विड्रॉवल, हमेशा जन के आशीर्वाद से इसको लीन पेशेंट है, लीन पेशेंट विथ हिर्सुटिज्म. तो 20 years का पेशेंट है, तो बहुत दुबली पतली लड़की आ गया है, 20 साल की उम्र अंदाजा, उसमें तो पीरियड आ गया तो बंद नहीं होते, बंद हो गया तो आते नहीं है. ऐसे तो कंटिन्यूअस पीरियड है. आ गया स्पॉटिंग, माइट बी स्टार्टिंग विथ स्पॉटिंग, फिर पीरियड हैवी हैवी, फिर कम हो गया, फिर अगेन स्पॉटिंग. इस तरीके के एक इरेगुलर पैटर्न आ जाते हैं. तो ऐसे लीन पीसीओडी में आ जाएगा. ये अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल सबसेंटिमेट्रिक फॉलिकल्स ऑन बोथ ओवरीज अरेंज्ड इन पेरिफेरी मोर देन 12 इन नंबर. तो अच्छे से पीसीओडी है. तो जनरली ओबेस पीसीओडी ट्रीट करना वेरी इजी है. हम कुछ ओबेसिटी रिलेटेड मेडिसिन दे दिया, कुछ एक्सरसाइज किया तो पेशेंट को जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा. बट लीन पीसीओडी इतना आसान नहीं है. उसमें हायर मेंटल फंक्शंस, एचपीओ एक्सिस जो फोलिकल एफएसएच एलएच रेशियो में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा. एंड पेशेंट का कुछ माइट बी सम जेनेटिक रीजन या सम स्ट्रेस इश्यूज, डेफिनेटली कुछ टेंशन रिलेटेड या प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो पेशेंट को ज्यादा हम योगा एंड मेडिटेशन में फोकस करना पड़ेगा. जिम वगैरह एडवाइस करने में इतना रिलेवेंट नहीं है, तो हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इस तरीके की चीजें हम एडवाइस करेगा, साथ साथ हमारा मेडिसिन देगा. एंड नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. इसमें तो हाइपो एचपीओ एक्सिस का करेक्शन, एफएसएच एलएच रेशियो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन की वजह से जो होते हैं, जो एब्नॉर्मैलिटीज दिखाते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स है. तो स्ट्रेस तो मेन फैक्टर हो सकते हैं. तो उसमें हम माइंड के लिए जैसे कल्याणक घृतम, कल्याणकम कषायम, इस तरीके की मेडिसिन देना पड़ेगा. मेध रसायन, शंख पुष्पी, मानसमित्र वडकम, मंडुकपर्णी. मंडुकपर्णी हम स्वरस रूप में दे सकते हैं, कल्क रूप में दे सकते हैं, विद सुकुमारम कषायम दे सकते हैं. ये ओवुलेशन, जो पीसीओएस इतना ज्यादा फॉलिकल्स है तो इसमें तो ओवुलेशन तो नहीं होगा, इट्स एन ओवुलर साइकिल्स ओनली. तो उसमें यदि ये पेशेंट फर्टिलिटी पॉइंट में आ गया तो हमें ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए मंडुकपर्णी विद सुकुमारम कषायम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ओवुलेशन इंडक्शन में. एंड अनदर मेध्य रसायनास देना पड़ेगा. कल्याण घृतम, मेध्य रसायनम, शंख पुष्पी, मानस मित्रवटकम, मंडूकपर्णी, ब्रह्मी घृतम. एंड हमारा नया प्रोडक्ट है जेली कोड सिरप. इस तरीके की एक्सेट्रा ओरली मेडिसिन दे सकते हैं, विच इज मेध्या. एंड शिरोधारा, मतलब इफ इट इज आईटी प्रोफेशनल है या कुछ घर पे प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, तो शिरोधारा हम कई तरह की शिरोधारा दे सकते हैं. ऑयल से दे सकते हैं, तक्रधारा बटर मिल्क दे सकते हैं, शीतला औषधास डाल के, जैसे पंचगंधक क्षीरधारा, इस तरीके की हमें शिरोधारा दे सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिरोधारा दे सकते हैं. ऐसे हम लीन पीसीओएस को इस तरीके की ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. उसमें डायरेक्टली सुकुमारम कषायम इस तरीके की मेडिसिन एक्ट नहीं करेगा. मैं ऐसे भी देती हूँ कुछ पेशेंट्स को, जैसे फर्टिलिटी पॉइंट में आ गया तो पहले दाढ़ी खत्म, सुकुमार खत्म टिल 14th डे या 15th डे देते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट once a day. एंड 15th डे से भालघृत देते हैं, भाल सर्विस. ठीक है, वो कंटिन्यूअसली टिल नेक्स्ट पीरियड. तो उस तरीके की पैटर्न में जनरली ओवुलेशन बहुत अच्छे से हो जाते हैं. तो फर्टिलिटी, लीन पीसीओएस विद फर्टिलिटी में उस तरीके की घृत पानास बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. केस नंबर 4. A couple came for infertility management. Period of married life 11 years. तो 35 प्लस एज तो होगा.
एंड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस। पीसीओडी का ये एनोवुलर साइकिल की वजह से एक की क्वालिटी बहुत कम है तो मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 3 मिसकैरेजेस irregular with scanty menstruation of once in 3 to 4 months, severe obesity, diabetic and stressed, insulin resistance होके या genetic reason से diabetic भी हो गया, 35 plus age भी है and stressed, obviously stressed होगा। ovulation induction failed due to ovarian hyperactivity, तो patient IVF के लिए जाते हैं तो वो लोग egg retrieval के लिए जब इंजेक्शंस दे देते हैं तो ओवरी हाइपर एक्टिविटी AMH वगैरह बहुत ज्यादा होगा ना इस पेशेंट का, तो आईवीएफ के लिए जब एग रिट्राइवल करते हैं ओवरी का हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छे से नहीं निकल पाएगा एंड मैक्सिमम फॉलिकल्स के डैमेज भी कर पाते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट का आईवीएफ जो एग रिट्राइवल प्रोसीजर्स है वो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही बोलते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स। तो ये ठीक करके उनकी ओवरी का हाइपर एक्टिविटी कम करने के बाद नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं तो आईवीएफ के लिए भेजने के पहले हमारा ट्रीटमेंट काफी इम्प्रूवमेंट दे देगा। डायबिटिक पेशेंट है तो इसका इट्स अ डिफिकल्ट केस एक्चुअली, इसमें तो हम ओरल मेडिसिन थोड़ा लंबे टाइम एंड पंचकर्म ट्रीटमेंट सब देखकर ठीक करके एक बार नेचुरली कोशिश करेंगे। एट 35 प्लस एज है तो नेचुरली हम 6 मंथ्स ट्रीटमेंट से कोशिश करके कोई फायदा नहीं हुआ तो हम आईवीएफ के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ एम्ब्रियोज फ्रोजन हो गया तो दे कैन ट्राई नेचुरली। बाद में कभी 38 प्लस में एमएच काफी डाउन हो गया तो हमें अपनी एम्ब्रियोज यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डोनर एक्स में जाना पड़ेगा। तो हमारी प्रिपरेशन करके हम पेशेंट को आईवीएफ के लिए भी भेज सकते हैं बिकॉज इट्स इज डिफिकल्ट केस। नेक्स्ट स्लाइड। PCOS विद इनफर्टिलिटी, मेन चीज तो एनोवुलेशन ही है, इस तरीके की पीरियड्स में कैसे ओवुलेशन होगा। तो सुकुमारम कषायम विद मंडूकपर्णी सुरसा एंड सुकुमारक हृता विद शतपुष्प चूर्ण, ये सब बहुत इफेक्टिव है ओवुलेशन के लिए। एंड पंचकर्म ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, स्नेहमानम वमनम दे सकते हैं, स्नेहमानम विरेचन। पेशेंट सुकुमारा है तो सब नहीं कर सकते, पेशेंट टॉलरेंस देखिए करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली टॉलरेंस देखिए हमें वमन और विरेचन दे सकते हैं। उत्तर बस्ती हम जनरली ओवुलेशन के लिए देते हैं। उत्तर बस्ती तो पहले नहीं देगा, सब कुछ शोधन शमन सब कुछ करके ऐसे ब्रह्मांड प्रोसीजर हम उत्तर बस्ती देते हैं सबसे लास्ट। वो फल सरफेस यूज कर सकते हैं, महानारायण तेल यूज कर सकते हैं, तो ओवुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग 18 to 22 mm 14 डेज के अंदर हो जाते हैं, हम फल सरफेस महानारायण तेल से उत्तर बस्ती करेंगे तो। एंड ओवुलेशन करेक्शन मेडिसिन से करना पड़ेगा, उसके बाद ही उदरबस्ती करते हैं। तो या नेचुरली कंसीव करेगा या आईवीएफ के लिए भेज सकते हैं, एम्ब्रियोस फ्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट। पीसीओएस विद इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटिक पेशेंट है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, तो इसलिए इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो इसमें पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट डायबिटिक्स के लिए लेते होगा तो हम उसका देखें। लाइफस्टाइल चेंजेस डायबिटीज में मेन तो यही है ना, एक्सरसाइज, डाइट रेस्ट्रिक्शंस, योगा, मेडिटेशन, उसके बाद ही मेडिसिन का रोल है। तो ये सब पेशेंट को समझा के, स्ट्रेस तो बहुत मेन रीजन होगा, 11 साल शादी करके बच्चे नहीं है तो स्ट्रेस फैक्टर तो बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। तो पेशेंट को समझाना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज में, इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आपको ओवुलेशन में क्या प्रॉब्लम होगा, बच्चे पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है। फ्यू ऑफ द मेडिसिन हम दे सकते हैं, कनकदिरादि कषायम, अमृत बिहारी चूर्णम या ग्लाइसिकोड ग्रैन्यूल्स दे सकते हैं, हीरुर्यादि गुलिका, चंद्रप्रभा वटी, शिलाजित कन्मदवसम। वी हैव मेनी मेडिसिन फॉर डायबिटीज, तो इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस बना के देना। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, शुगर का मॉनिटरिंग करेंगे। डायबिटीज कंट्रोल में आने के बाद हम सारी मेडिसिन साथ साथ दे देंगे तो इनफर्टिलिटी में काफी अच्छी रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट केस। Case number 5, last case है। A student of 16 years came with irregular periods, menarche since 4 years with severe anemia। तो periods 4 साल से शुरू है तो 12 years में शुरू हो गया है, irregular pattern है and severe anemia है, BMI less than 18। तो MC started with spotting for 3-4 days, then heavy periods 5 to 6 days, again spotting 5 to 6, 7 days, initially 2 years, and now spotting for 3 to 4 days, then heavy periods more than 10 days,
अरेस्टिंग पीरियड्स ओनली विथ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। तो ऐसे ट्रेनेक्सा दे रहे होगा, ट्रेनेक्सा से बंद नहीं हो रहे तो रेजिस्ट्रोन दे रहे होगा, इस तरीके की उन्होंने पीरियड्स अरेस्ट करने के लिए मेडिसिन दे रहे होगा। नाउ और ओसीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ही कंट्रोल कर रहे होगा बच्चे को उम्र 16 है। तो पेरेंट्स आके बोलेगा बच्चे बहुत एलोपैथी खा चुका है, 16 उम्र हो गया कैसे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड, तो हम इसको डीयूबी की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। डीयूबी की तरह इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। प्यूबर्टी मेनोरेजिया समझ सकते हैं। तो डीयूबी में अभी पेशेंट आ गया स्पॉटिंग बोल रहे, ब्लीडिंग बोल रहे, तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट फॉर अरेस्टिंग द पीरियड्स। पीरियड बंद करने की पहले हम ट्रीटमेंट दे देगा, देन ओनली वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी। तो पहले पीरियड्स अरेस्ट करने के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो दे दीजिए। वो ये मुसली खदिरादि कषायम विद पुष्यानग चूर्णम और प्रवाला बसम कैप्सूल दे सकते हैं, कनाशा दाहुआदि कषायम दे सकते हैं, निर्गुंडी आदि कषायम दे सकते हैं, एंड मुकुत्ती एक्सट्रैक्ट, समूला स्वरसा एंड मिल्क डिकॉक्शन एंड चंदनासम, अशोकारिष्टम, हिबिस्कस फ्लावर और लोटस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर हमें लेकर 5 to 6 फ्लावर्स उसकी पेटल्स निकाल के दूध के साथ हमें मिक्सी में पीस के दे सकते हैं एम्प्टी स्टमक फॉर 3-4 डेज रेगुलरली। उस तरीके के हमें लोटस फ्लावर भी दे सकते हैं, 3 लोटस फ्लावर्स उसकी पेटल्स निकाल के थोड़ा सा दूध से या पानी से मिला के एम्प्टी स्टमक दे सकते हैं। डीयूबी में हम फ्रूट डाइट भी बोलते हैं, एवरी 2 आवर्स फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया, पाइनएप्पल, इस तरीके की ज्यादा गर्म प्रोड्यूस करने वाली फ्रूट्स छोड़ के बाकी फ्रूट्स देने के लिए एवरी 2 आवर्स। नॉर्मल डाइट की जगह फ्रूट्स ओनली। समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन सब हो जाते हैं तब त्रिफला भी साथ में दे देते हैं, फ्रूट डाइट बोलते हैं, इससे काफी रिजल्ट है। समटाइम्स मेडिसिन बच्चे इतना चूरन वगैरह नहीं खा पाएगा, वो मना करते हैं, तो फ्रूट डाइट, हिबिस्कस, लोटस ऐसे कुछ हम जो सिंपल ट्रीटमेंट से दे देते हैं, तो विद इन 5 to 7 डेज पीरियड्स बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हम बोलेगा उनसे हम दोबारा ऐसे ना होने की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। बच्चे को एक्सरसाइज, योगा वगैरह सब कुछ करवा लीजिए, कंटिन्यूअस सिटिंग एज करेक्शन हम बच्चे को समझाएगा, बच्चे पेरेंट्स को समझाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रीटमेंट। विद इन 3 months ये पीरियड सब रेगुलर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, पीसीओएस विद अनीमिया। तो हीमोग्लोबिन कम है तो हम खाने में बताएगा, हम अनार दे दीजिए, चुकंदर, कैरेट वगैरह सब कुछ दे दीजिए। तो डाइट में हमें पता है ना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है वो सब हम एडवाइस करेगा। उसके साथ हमारी टॉनिक्स, हीमोकोट सिरप, मंडूर वडगम, अन्नवेदी सिंदूरम, लोह सिंदूरम, द्राक्षादि कषायम, दाडिमादि घृतम, इस तरीके की काफी मेडिसिन है जो भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वो हम दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, एंड शोधना और पंचकर्म ट्रीटमेंट। जो भी पेशेंट्स हैं इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी पॉइंट में आते हैं एंड द पेशेंट्स अफोर्डेबल भी है, तो हम उनको पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट को एडमिट करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पहले देना पड़ेगा। तो नस्यम नस्यम ट्रीटमेंट है एचपीओ एक्सिस करेक्शन के लिए अच्छा है। तो 2 तरीके की है, यदि पेशेंट का हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कंडीशन है, पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज्ड है, तो हम वो कम करने के लिए हम क्षीरबला के साथ हम तलब कर सकते हैं, ये क्षीरबला हेड एप्लीकेशंस कर सकते हैं, एंड पंचगंध चूर्ण के साथ कर सकते हैं। धन्वंतरम आवर्ती 21 आवर्ती हम प्रतिवर्ष नस्यम की तरह दे सकते हैं। उसके अलावा हमें यदि डीयूबी कंडीशन है, बहुत ज्यादा हेवी पीरियड्स है, वासासुरसम, दुर्वासुरसम, ये सब हम नस्यम की तरह दे सकते हैं। इस तरीके की जो इंस्टेंट स्तंभना ड्रग्स हम यूज करके नस्यम कर सकते हैं। एंड वमना कभादि के कंडीशन, इन द ओबेसिटी पेशेंट्स कम, डेफिनेटली हम वमनम करके बहुत अच्छी से माइट बी 6 to 8 kgs एट ए स्ट्रेच हम रिड्यूस करके दे सकते हैं। विरेचना, इफ द कंडीशन इज पित्ताधिक्य, हम विरेचन दे सकते हैं, उसमें भी 5 to 6 kgs मिनिमम रिड्यूस होगा इफ द पेशेंट इज ओबेस। एंड Vasti, mainly for anovulation, we have Sukumaram Kashayam Vasti, we have Panjatiktaga Kashaya Vasti, Erandamuladi Vasti, and Kshara Vasti. इस तरीके की एनिमास प्रोसीजर से इंस्टेंट रिलीफ, ऑयल एनिमा भी दे सकते हैं, महानारायण तेल वगैरह यूज करके, सुकुमार खतम ये सब यूज करके हमें ऑयल एनिमास भी दे सकते हैं। तो कषायम एनिमा विद वेज we have to select according to dosha. एंड उत्तर बस्ती सबसे लास्ट देते हैं, द पेशेंट विद इनफर्टिलिटी एंड विद अनोवुलेशन। सबसे लास्ट हम भालसर पीस या महानारायण तेल, महाबला तेल
सुकुमारकतम एक्सेट्रा, कोई भी मेडिसिन से अकॉर्डिंग टू कंडीशन उतरबस्ती दे सकते हैं। उतरबस्ती जनरली आफ्टर पीरियड्स 3 to 5 days हम देते हैं एवरी साइकिल। तो फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉलिकुलर करके देखना है एवरी मंथ 3 consecutive months हम फॉलिकुलर करके देखते समय हमें विजिबल चेंजेस दिखेगा। जो उतरबस्ती का रिजल्ट हम इतने मंथ हमें समझ आ जाएगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग यदि पेशेंट का 7 mm 6 mm सब लाइनिंग थे 14th डे, एक ही उतरबस्ती में वो 11 mm पहुंच जाएगा, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। एंड पंचकर्म ट्रीटमेंट के बाद ही उतरबस्ती कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा रिजल्ट। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रेगनेंसी में वेट और गेन करेगा तो पेशेंट को वेट रिडक्शन करने के बाद ही इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दीजिएगा। एंड अवगाह स्वेदन, समटाइम्स पीसीओडी रिलेटेड विद डिस्मेनोरिया पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, तो उसमें अवगाह हम हमें कर सकते हैं। एंड सप्तसारम कषायम हिंगवादिगुलिका हिंगु त्रिगुणा तैलम षडधरणम चूर्णम टैबलेट, इस तरीके की डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी के अलावा कुछ भी डायग्नोस नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस वगैरह इनिशियल स्टेज में डायग्नोस करना मुश्किल है, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अवगाह स्वेदन दे सकते हैं। सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन पंचगंध क्षीरम, पंचगंध चूर्णम एंड जडामयादि चूर्णम, जिस आमवादा काइंड ऑफ चिकित्सा हम दे सकते हैं। एंड if the patient is lean because of stress she is having PCOD, तो हम शिरोधारा शिरोमस्ती काइंड ऑफ थिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उद्वर्तनम तो मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड। Management diet with low GI carbs, rich vitamin D, C and B complexes, cut down the evening calories। सुबह बता ये ब्रेकफास्ट हैवी खाने की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना चाहिए। तो पुरानी जो सिस्टम हम सुबह सुबह बिना करके चले जाएंगे, फिर आके जो मर्जी 4 बजे खाएंगे, फिर रात बाहर से भी खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस और सब ओबेसिटी सब कुछ आ जाएगा। तो कट डाउन द इवनिंग कैलोरीज, शाम को ही खाना कम करना है, नाश्ता अच्छे से खाने की इंपॉर्टेंस बच्चे को समझाना है। वेट रिडक्शन डाइट चार्ट या डाइटिशियन से मिल सकते हैं, एंड हम एडवाइस करके एक वेट रिडक्शन डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं। एंड वॉलनट बादाम वगैरह दे सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटी। योगा, स्पेसिफिक योगा से अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम एडवाइस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, भद्रासन and Supta Vajrasan, Viparita Karani Mudra, Chakrasan, too many exercise we have। हम कोई भी एक्सरसाइज बच्चों को 2-3 एक्सरसाइज रेगुलरली करने के लिए समझाइए। एंड आजकल जुम्बा और एरोबिक्स बहुत इंटरेस्ट होते हैं बच्चों को वो एक्सरसाइज करने में। 45 मिनट्स टू 1 hour वीकली 5 days, उतना बोलेंगे तभी 30 to 40 मिनट्स करेगा। फिर हमको उससे रहना पड़ेगा, कर रहे नहीं कर रहे, वेट चेक करते रहना पड़ेगा, इंच लॉस हो असेस करने के लिए बोलते रहना पड़ेगा, डांटते रहना पड़ेगा, तभी बच्चे करेगा। एंड द मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन की टेक्निक समझाना पड़ेगा, या मंत्र उच्चारण, चैंटिंग द मंत्रास, जो खाली बैठते हैं 2 मिनट हो 3 मिनट्स हो वो भी यूज करके कुछ मंत्र उच्चारण कर सकते हैं आजकल बच्चों को। ये भी हमें समझाना पड़ता है, छोटी बात होगा बट समझाना पड़ेगा। और प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो हायर मेंटल फंक्शन के लिए जो प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, इस तरीके की प्राणायाम सब 2-3 प्राणायाम जो कर सकते हैं वो रेगुलर करने के लिए बोलेंगे। तो ये सब टुगेदर, ये तो इट्स बीइंग ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हम कुछ मेडिसिन दे दिया, पेशेंट डिलीवरी हो गया तो कुछ सिम्टम्स सही हो जाएगा। आफ्टर फास्ट डिलीवरी ऑलमोस्ट 80-90% सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं इफ दे आर नॉट टू मच ओबेस। उसके बाद बहुत ओबेसिटी हो गया तो अगेन प्रॉब्लम है। नहीं, इफ दे आर मेंटेनिंग द वेट आफ्टर फास्ट डिलीवरी, सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ग्रेजुअली पीसीओडी का असर उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, ये पेशेंट को समझाइए। बट इट्स नॉट क्यूरेबल आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो। तो इसका जो हार्मोनल सिम्टम्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ कैरी हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट पीसीओडी का करना बहुत मैंडेटरी है। पीरियड्स आना, रेगुलर करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पेशेंट को समझाना पड़ेगा। एंड ये आफ्टर इन फ्यूचर बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की तरह कन्वर्ट नहीं होना है। तो आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज और डाइट रेस्ट्रिक्शंस मैंडेटरी है थ्रू आउट लाइफ। ये भी हम पेशेंट को बार बार बोल के समझाना पड़ेगा, ठीक है। एंड द मेडिकेशन, थ्रू आउट लाइफ किसी को मेडिसिन नहीं खा सकते। तो 3 months 6 months मेडिसिन खा लिया, सब कुछ ठीक हो गया, तो हम वी हैव टू टेक ए ब्रेक। एंड अगेन हम
कुछ सिम्टम्स आ गए, अगेन मेडिसिन खा लिया, ये सब हम पहले ही समझाना पड़ेगा। एंड अल्ट्रासाउंड में समटाइम्स पीसीओडी ठीक हो गया होगा, कुछ पेशेंट्स आएगा पीसीओडी का, कोई अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आते हैं, अल्ट्रासाउंड रॉन्ग भी हो सकते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स रिपोर्ट में आएगा भी नहीं। बट एक बार पीसीओडी डायग्नोस हो गया तो उसकी सिम्टम्स रहेगा, तो मुझे पीसीओडी नहीं है पहले भी, अभी मुझे कुछ नहीं, मैं सब कुछ ठीक हूँ। तो ये तो समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, आपको सिम्टम्स आएगा कभी भी थ्रू आउट लाइफ, तो यू हैव टू टेक केयर। तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है और काउंसलिंग, स्त्री रोगा से ज्यादा, दिस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, जो लेसीनेस, जो लेसी है, जो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको आने वाली बीमारी है, ये हम पेशेंट को अच्छे से समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। Conclusion. Though multiple factors are involved in case of PCOS, the lifestyle, food habits, family history, occupational, and all the psychosocial factors are found to be major contributions. And इसमें contribution of Ayurveda is valuable in this juncture. मतलब OCP कंटिन्यूअस ले लेंगे तो ओवरी का रिस्पॉन्स, इट मे रिजल्ट टू प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। आप रेगुलरली पीरियड्स नहीं आया, आप OCPs खाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली 30 एज में, 34 एज में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जैसे कंडीशन आ सकते हैं। तो पेशेंट को समझाना पड़ेगा, जो आप लोग को 21 डेज से OCP खाते समय 28th डे पीरियड आ रहे होगा, ऐसे एक रिजल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको नहीं मिलेगा, बट आपको समझना चाहिए उसका साइड इफेक्ट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एलोपैथी डॉक्टर कितना भी अच्छे डॉक्टर के पास या कितना भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर के पास आप जाओगे, उनके पास यही ट्रीटमेंट है, OCP देना और मेटफॉर्मिन देना, ठीक है, या सिम्टोमेटिक हिर्सुटिज्म के लिए जो मेडिसिन है वो देना। बट आयुर्वेद का कंसेप्ट ऐसे नहीं है, हम निदान परिवर्जनम, हम उसकी निदाना से, कॉज ऑफ द डिसीज से जो सिम्टम्स है, ईच एंड एवरी सिम्टम्स हम मैनेज करके इसका थ्रू आउट लाइफ का जो चेंजेस है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, जो मेडिसिन से हम कर सकते हैं, सब कुछ इंक्लूड करके हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पीसीओडी में बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। तो वो पेशेंट का थ्रू आउट लाइफ ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलेगा, ये चीज हमें प्योरली क्लियरली समझाना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।